Okay, now quiet please. Now in the nervous system, you have seen here the central nervous system, various parts, the peripheral nervous system, and you know that the central nervous system means it's the brain and the spinal cord. And as far as the central nervous system is concerned, you see it's the spinal cord, brain, hind brain, midbrain and forebrain. And as far as your hind brain is concerned, it's medulla oblongata, pons, and on the back is the cerebellum. Forebrain, it is huge cerebrum, and hidden inside it will be diencephalon, composed of certain important structures like thalamus, hypothalamus, pituitary gland, pineal gland, etc. And then they are connected by means of a small piece in the middle that is called the midbrain. ये था सारा central nervous system. But attached to them are the nerves. You call them peripheral nervous system. Or in peripheral nervous system में you saw there 12 pairs of the cranial nerves जो हमने वहाँ पर देखे. And in these 12 pairs of cranial nerves, there are some nerves which are purely sensory. These are those nerves which are related to the special senses except taste. There are certain purely motor nerves. These are those nerves which control the muscles of the tongue and the eyeball, which are under your control, and these are purely motor nerves. And the remaining nerves are called the mixed nerves. And the mixed nerves, you know that these are 4 nerves which are controlling many functions. They are performing sensory as well as motor. And sensory means taste must be there, because you know that taste doesn't have its special sensory nerve. So they are taste sensation is carried by the mixed nerve, and then it's performing motor functions, other things also. ये तो हमने यहाँ पर cranial nerves में देखा. साथ में जब मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड बताया तो वहाँ पर हमने दिखाया कि इसका ये ट्रांसवर्स सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, एंड स्पाइनल कॉर्ड इज अटैच्ड हियर टू द स्पाइनल नर्व्स. और एक टिपिकल स्पाइनल नर्व भी मैंने डिस्कस की थी कि टिपिकल स्पाइनल नर्व हमेशा एक ही हम नर्व को ले लेते हैं, बिकॉज ऑल 31 नर्व्स दे आर identical. So a typical spinal nerve attachment to the spinal cord, it is important to understand. वहाँ पर हमने दिखाया आपको कि these are the nerves which are actually are all mixed nerves, the sensory and the motor. As far as their motor neurons are concerned, these motor neurons are present in the anterior horns. ये एक न्यूरॉन मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाखों करोड़ों होते. इसके डेंड्राइट्स यहाँ पे अंदर होंगे और इनके एक्सॉन्स बाहर निकलेंगे. जैसे बाहर निकलेंगे ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे. अंदर जब तक थे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है. ये बाहर निकले तो क्या निकला इनका एक्सॉन निकला है. तो एक्सॉन के बंडल जैसे बाहर निकले तो इनका नाम अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा और इनका नाम पड़ जाएगा नर्व्स. अभी ये फुल नर्व नहीं बनी है, अभी इसका सिर्फ मोटर कंपोनेंट है, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं रूट. अभी रूट है ये, अभी नर्व नहीं नाम डालेंगे इस पर. ये है इसका मोटर रूट जो एंटीरियर साइड पर है, तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर रूट. और ये एंटीरियर रूट अंदर तो नहीं रहेगा, जाहिर है बाहर आना है. इसका टारगेट है मसल, स्केलेटल मसल. तो बाहर आने के लिए बिटवीन द वर्टिब्रा गैप होता है जिसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन. तो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से ये बाहर आते हैं. ये आपका मोटर रूट है. लेकिन मसला ये है कि मोटर रूट सिर्फ तो नहीं होता है. अब ये मोटर रूट अगर जाता अभी तो ये क्या आता, ये नर्व होती है हमारी, और नर्व जाके टारगेट करती किसको, मसल को. कहाँ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे. इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं. अरे से तो यहाँ पर ये टारगेट, ये अकेली तो नहीं जाती जाहिर है, क्योंकि एक टिपिकल नर्व में सेंसरी फाइबर्स भी होंगे. इसका मकसद है कि सेंसेशन कहाँ से उठेगी, पेरिफेरी से. किस टाइप के सेंसेशन, पेन, टच, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, प्रेशर और प्रोप्रियोसेप्शन, मूवमेंट वगैरह, ये सारी सेंसेस हमें पता चलती हैं. और पता चलती हैं तो कहाँ से, पेरिफेरी से सिग्नल आते हैं. ये मैं आपको बता चुका पहले. ये हमारा स्किन है, ये हमारा मसल है, किसी भी जगह से रिसेप्टर मौजूद होंगे. स्टिमुलस आप लगाएंगे, ये यहाँ से कन्वर्ट होगा इम्पल्स में और उसको पकड़ लेगी हमारी नर्व. नर्व कौन सी, ये सेंसरी पार्ट ऑफ दैट नर्व. वही नर्व, सेम नर्व, लेकिन उसमें अब सेंसरी पार्ट होगा. और सेंसरी पार्ट कहाँ से इंटर होगा, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से. और इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के बाद कहाँ इंटर हो जाएगा, पोस्टीरियर हॉर्न में, और यहाँ रिले हो जाएगा. इसका मकसद है कि ये एक न्यूरॉन है. ये अगर न्यूरॉन है तो इस न्यूरॉन की सेल बॉडी कहाँ है, इसकी न्यूरॉन की सेल बॉडी यहाँ मौजूद होती है. ये मैंने आपको दिखाया था यहाँ आपको. अब देखिए ये न्यूरॉन देखें, ये न्यूरॉन देखें, दोनों के शेप में फर्क है. ये न्यूरॉन जहाँ देखा हमने, इस न्यूरॉन को आप यहाँ पे देखें, ये ऐसे है, इसके ये डेंड्राइट्स हैं और इसका ये एक्सॉन. इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं. ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. लेकिन ये वाला जो सेंसरी न्यूरॉन होता है उसकी शक्ल ये होती है. ये इसकी सेल बॉडी, जैसे ये सेल बॉडी है, ये इसका एक एक्सॉन, इस एक एक्सॉन के 2 टुकड़े.
देखा नहीं, यहाँ से देखिए इसका एक लंबा जो पीस होगा वो जाएगा कहाँ, रिसेप्टर के साथ, और जो छोटा वाला होगा वो बनाएगा रूट। कौन सा रूट, सेंसरी रूट। और सेंसरी रूट कहाँ होगा, पोस्टीरियर साइड पर, और पोस्टीरियर साइड पे सेंसरी रूट है, इसको हम पोस्टीरियर रूट भी कहते हैं, सेंसरी रूट भी या डार्सल रूट भी। और ये सेल बॉडी इसकी इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में होती है। इस किस्म के न्यूरॉन्स को हम कहते हैं सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ये बताया था ना मैंने आपको, अंडरस्टैंड। और इसके अलावा इस किस्म के भी न्यूरॉन्स होते हैं लाइक दिस, इनको हम बाइपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सेंसेस में होते हैं। तो ये न्यूरॉन क्या कहलाता है, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहलाता है। और ये किस में रिले करेगा, ये पोस्टीरियर हार्न में रिले करेगा। और पोस्टीरियर हार्न के जो एक्सॉन्स होंगे वो साइड क्रॉस करने के बाद ऊपर जाएंगे, ब्रेन को बताएंगे, तो आपको एहसास होगा। ये एक टिपिकल स्पाइनल नर्व है। लेकिन जैसे ये टिपिकल स्पाइनल नर्व बाहर आती है, तो जैसे ही बाहर आएगी इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से, अपने सेंसरी और मोटर रूट्स को मिला के एक मिक्स नर्व बनते हुए जैसे बाहर निकलेगी, तो उसको अब उसकी जिम्मेदारियां दो हैं। क्योंकि जब आप बॉडी को काटेंगे ना, जब आप अपनी बॉडी को जैसे काटेंगे, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं कि ये हमारी बॉडी है, ये यहाँ से हमने नर्व निकाली है ऐसे, ये नर्व बाहर आ गई है। तो बाहर नर्व जब आ गई तो ये बैक साइड जो है आपकी, जिसको हम डार्सल साइड कहते हैं, ये वाली जो एरिया है, और एक एरिया ये है, ये हमारा डार्सल व्यू है बॉडी का। और उसके बाद लेटरल से होता हुआ एंटीरियर तक ये वेंट्रल व्यू है हमारे बॉडी का। और सबको सप्लाई इसी नर्व को करना है जो यहां से निकली है। कौन सी नर्व, तो ये डिपेंड करता है, अगर यहां से आई तो फर्स्ट सर्वाइकल, यहां से आई तो सेकंड सर्वाइकल। ये नर्व ने अपने अपने हिस्से बांटे हुए हैं। जैसे ना कोई कबायली निज़ाम होता है, लोग बांट लेते हैं अपने इलाके कि यहाँ मैं हूँ, यहाँ वो है, ये फलां है, फलां है, मेरी एरिया को कोई और कवर नहीं कर सकता। जैसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ये वहाँ जैसे जामशोरो का डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है जामशोरो हैदराबाद की जो लाइन है ना, यहाँ पर वो लाइन जो है, यहाँ आपके ये जो कोटड़ी बैराज है, जो अलमंजर पे जो पुल बना हुआ है ना, इसके आधे से उस तरफ जामशोरो है, इस तरफ हैदराबाद है। और इस पुल पे कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो पुलिस वालों को कंफ्यूजन होती है कि ये जामशोर वाले केस लिखे, हैदराबाद वाले लिखे, वो पड़ा रहता है, वो खुद लड़े होते हैं उनकी। तो इसका मकसद है कि ये नर्व को भी इलाके बांटे हुए हैं अल्लाह ताला ने। तो यहाँ पर फर्स्ट है, सेकंड है, लेकिन जिसको भी इलाका दिया गया है, काम सभी एक जैसे करते हैं। कौन सा काम, सेंसरी और मोटर काम। लेकिन जैसे बाहर आती हैं, हर इलाके में क्या है, ये डार्सल वाला हिस्सा भी है और साथ में ये वेंट्रल भी है। तो इस सेम नर्व जो है, जो नर्व आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस सेम नर्व की जिम्मेदारी है कि डार्सल को भी करे। और तो जैसे ये नर्व बाहर निकलती है, इसका पहला काम ये होता है कि जैसे ये नर्व बाहर निकली है कि छोटा सा डार्सल रेमस पीछे छोड़ेगी और एक लंबा सा वेंट्रल रेमस आगे ले आएगी। क्योंकि आगे कोई अलग स्पाइनल कार्ड तो नहीं ना है, स्पाइनल कार्ड तो यही है। यहाँ से निकलने वाली नर्व के दोनों काम है, पीछे भी करे सप्लाई और आगे भी करे। तो इन दोनों को सप्लाई करना इसका काम है। और दोनों को जो सप्लाई करना इसका काम है, तो दोनों में फाइबर्स क्या होने चाहिए, दोनों में सेंसरी मोटर दोनों में होने चाहिए। ये ऐसे नहीं जो, तो ये क्या है, ये छोटा सा ब्रांच पीछे और बड़ा सा ब्रांच आगे। और जो आगे वाला ब्रांच है वो कवर करेगा दो एस्पेक्ट्स को, लेटरल को भी और एंटीरियर को भी। लेकिन पीछे वाला पीछे ही रहेगा। और पीछे वाले का काम भी क्या होगा, सेंसरी मोटर दोनों, और आगे वाले का भी काम सेंसरी मोटर दोनों। ये नहीं होगा ऐसा कि ये पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, जब इसके दो रेमाएं बनाएंगे, इन ब्रांचेस को हम कहते हैं रेमस। तो एक डार्सल रेमस है, एक वेंट्रल रेमस है। वेंट्रल रेमस को भी अपने हिस्से का सेंसरी और मोटर मिलेगा, और डार्सल को भी अपने हिस्से का सेंसरी मोटर मिलेगा। लंबा कौन सा होगा, वेंट्रल रेमस लंबा होगा, जो आप यहां पे देख रहे हैं। अब मसला यह है कि जैसे ये वेंट्रल रेमस है, बॉडी ये तो नहीं है जैसे हमने बनाई है, बॉडी को साइड से लिम्ब भी तो निकलेगी ना। जब बॉडी डेवलप होगी तो बॉडी सीधी तो नहीं होगी, ऐसे बॉडी की लिम्ब्स भी निकलेंगी, जिनको हम लिम्ब बर्ड्स कहते हैं। उनमें भी बोन्स होंगे, उनमें भी मसल्स होंगे, उनमें भी स्केलेटल मसल्स होंगे, उनको भी सप्लाई चाहिए, मोटर सप्लाई। क्या उनको स्किन नहीं है, तो उनको भी सेंसरी सप्लाई चाहिए। तो इसका मकसद है कि यहां भी किसी नर्व को जाना पड़ेगा। अब नर्व तो यही है, सब काम यही करने वाली है। अब यहां जो नर्व जाएगी तो इसमें कौन सा रेमस जाना चाहिए, एंटीरियर रेमस या वेंट्रल रेमस, क्योंकि ये लिम्ब साइड से आ रही है। और इस आपको नहीं सर वेंट्रल रेमस है, ये तो लेटरल साइड से निकल रही है। भाई वेंट्रल रेमस लेटरल से होता हुआ तो एंटीरियर आता है। तो जो गाड़ी गुजरेगी आप उसी ट्रेन में चढ़ेंगे ना, जाहिर है ये आपके घर से गुजरती है। डार्सल रेमस तो आगे ही नहीं आता, तो वेंट्रल रेमस ही हमेशा लेटरल साइड को सप्लाई करेगा। और लिम्ब यहां से निकले, हाँ अगर आपके लिम्ब पीछे से निकलती तो फिर तो पोस्टीरियर रेमस करता। लिम्ब किसी के पीछे निकलती नहीं है, जाहिर लेटरल साइड से निकलती है। लेटरल साइड से निकलती है तो यहां से फिर इसके अंदर कौन जाएगा, वेंट्रल रेमस जाएगा।
तो ये वेंट्रल रेमस इसके अंदर जाएंगे, तो इसका मकसद ये है कि ये वेंट्रल रेमस विल इंटर इनटू द लिम्स, क्या लेके? अपने सेंसरी और मोटर फाइबर्स दोनों लेके। समझ गए? अब ये वेंट्रल जो रेमस है, ये कितने रेमस अंदर जाएंगे, कितनी नर्व्स के, ये डिपेंड करता है। मैंने बताया था पहले आपको कि लिम्ब का रूट जहां से ये उभरी है कितना चौड़ा है, उतने एंटीरियर रेमाए अंदर जाएंगे। तो इसका मकसद है कि एक नर्व नहीं जाती है, एक नर्व का एंटीरियर रेमस नहीं जाएगा, दूसरे का भी जाएगा, तीसरे का भी जाएगा, चौथे का भी जाएगा, पांचवे का भी जा सकता है, इससे ज्यादा भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्या है, डिपेंड करता है कि ये जो रूट है ये कितना चौड़ा है, लिम्ब का रूट कितना बड़ा है, किसका ज्यादा बड़ा होगा, अपर का कि लोअर का? लोअर का। तो लोअर में ज्यादा एंटीरियर रेमाए जाएंगे नर्व्स के, और जाहिर है नीचे वाले जाएंगे, और अपर लिम्ब में कम जाएंगे। और कौन से वाले जाएंगे? अपर वाले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं, 31 स्पाइनल नर्व्स, इन टोटल 31 स्पाइनल नर्व्स में हमारे पास 7 सर्वाइकल हैं, 12 थोरेसिक हैं, 5 लंबर हैं, 5 सेक्रल हैं और 1 कॉक्सिजल है। ये मिलाएंगे तो ये 31 निकलेंगे, जाहिर है दोनों साइडों से। तो हम एक साइड पढ़ते हैं सिर्फ, तो ये 31 पेयर्स यहाँ पर नर्व्स के। और 31 पेयर्स के अंदर ये जो नर्व्स हैं आपकी, ये जो 8 सर्वाइकल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, 8 सर्वाइकल नर्व्स होती हैं। बाकी जितने वर्टिब्रा उतनी नर्व्स सवाए सर्वाइकल के, जहां वर्टिब्रा से एक ज्यादा होती है नर्व, वरना 30 वर्टिब्रा तो 30 नर्व्स होती, 31 नर्व्स हैं तो एक नर्व ज्यादा है किसकी? सर्वाइकल की। तो वहां 8 वर्टिब्रा, 7 वर्टिब्रा में 8 नर्व्स होती हैं। तो ये तो वहां पर इस तरीके से यहाँ पर। अब ये जब आपने यहाँ पे देखा तो ये नर्व्स हमारे बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? हमारे पास 31 डिस्ट्रिक्ट्स में 31 सिंध है, 31 हमने डिप्टी कमिश्नरों को अपॉइंट किया है, कितने कितने टुकड़े हम उनको देके 31 डिस्ट्रिक्ट्स कैसे हम क्रिएट करें? तो इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि ये जो 8 हैं हमारे, इनके 2 हिस्से कर दोगे, ऊपर के 4 और उसके बाद नीचे के 4, और उसमें अगर T1 भी मिला दोगे तो ये जो ऊपर के 4 हैं, ये कौन से 4? C1 से C4। ये 4 नर्व जो हैं ये सप्लाई करती हैं नेक को, नेक की मस्कुलेचर और उसकी स्किन को भी। और यही नहीं बल्कि हेड के पीछे तक भी जाएंगी, फेस पे नहीं आएंगी, फेस सिर्फ क्रेनियल नर्व्स का काम है। यहां अलग चीज है। ये फेस जो है, ये आधा फेस जो है, आधा फेस मान आधा हेड और फेस, ये क्रेनियल नर्व्स है। बाकी पीछे वाला हेड और नेक पूरा किसको? इन 4 सर्वाइकल नर्व्स को देंगे। उसके बाद ये जो हम यहां पे देखेंगे, ये बाकी 4 सर्वाइकल दूसरे, ये जो 4 सर्वाइकल माने कौन से वाले? अब C5 से लेके C8 तक, उसमें हम T1 भी शामिल कर देंगे। यहां पर ये T1 अगर हम यहां शामिल कर देंगे तो ये वाले जो एंटीरियर रेमाए होंगे, ये वाली जो नर्व्स होंगी, वो सप्लाई तुम्हारे अपर लिम्ब को करेंगी। अपर लिम्ब को नर्व सप्लाई करेंगी। क्या पूरी नर्व जाएगी या उसका सिर्फ एंटीरियर रेमस जाएगा? तो पोस्टीरियर रेमस पीछे रहेगा, उसका सिर्फ एंटीरियर रेमस जाएगा। नेक में भी ऐसे ही होगा, पोस्टीरियर रेमस पीछे रहेगा, एंटीरियर रेमस आगे आएगा। लिम्ब में क्या करेगा? पोस्टीरियर रेमस से पीछे रहेगा, अंदर कौन आएगा? सिर्फ एंटीरियर रेमस। और आगे से बाकी जो थोरेसिक रह गई वो आपके थोरेक्स को और एब्डोमेन को सप्लाई करेंगी, उसमें L1 भी शामिल हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी लंबर रह गए और सेक्रल रह गए, उसमें से वो सारे के सारे तुम्हारे लोअर लिम्स को सप्लाई करेंगी। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके नर्व्स डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। अब यहां से आप देखें, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये नर्व्स आपने यहां पे देख ली, इनके अटैचमेंट इस तरीके से। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एंटीरियर रेमाए जा रहे हैं जो किसके अंदर? लिम्स के अंदर। लेकिन लिम्स के अंदर ऐसे ही नहीं अंदर चले जाते, ये खाली खाली ऐसे नहीं जाते। मैंने बताया था जब भी एंटीरियर रेमस लिम्ब में दाखिल होने के लिए, जाने के लिए उसको जिम्मेदारी मिलेगी, तो लिम्ब में दाखिल होने से कुछ पहले ये एंटीरियर रेमाए इंडिविजुअली अकेले अकेले नहीं जाते, ये एंटीरियर रेमाए आपस में मिल जाते हैं। लिम्ब में दाखिल होने से पहले वो आपस में मिल जाते हैं। ऐसे मिले हुए नेटवर्क का नाम होता है प्लेक्सस। क्या कहते हैं? प्लेक्सस। तो वो प्लेक्सस, तो जहां से अगर ये नर्व इंटर हुई, फॉर एग्जांपल ये नर्व इंटर हुई, आप समझ सकते हो कि चलो C5 इंटर हुई, उसका कौन सा रेमस? सिर्फ पोस्टीरियर रेमस कभी भी प्लेक्सस नहीं बनाएगा, वो आता ही नहीं आगे, वो यहां पर अकेला अकेला रहता है। छोटा सा टुकड़ा सप्लाई किया, इनफ, इसका तो ज्यादा काम ही नहीं है। ज्यादा किसका काम है? एंटीरियर रेमस का। और एंटीरियर रेमस का काम ज्यादा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो इसका पैटर्न भी डिफरेंट है। समझे? इसका स्लूब, इसका स्टाइल भी डिफरेंट है। वो जैसे अंदर आता है तो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करता है, कॉपरेट करके एक नेटवर्क क्रिएट कर देता है।
तो जैसे ये नेटवर्क क्रिएट करेगा लाइक दिस, ऐसे ऐसे, कहाँ, लिम्ब में दाखिल होने से पहले, और जैसे नेटवर्क क्रिएट करेगा तो फिर इस नेटवर्क से निकलेंगी आपकी इंडिविजुअल नर्व्स, और वो जो नर्व निकलेगी उसके लिए अब चांस बन गया है, क्योंकि वो प्लेक्सस से इमर्ज हुई है, तो प्लेक्सस क्योंकि 4-5 रेमाय से मिलकर बनता है, एंटी रेमाय ऑफ द डिफरेंट नर्व्स में, तो इसके अंदर फाइबर्स पहले वाले रेमस के भी हो सकते हैं, दूसरे के भी हो सकते हैं, तीसरे के भी। क्यों? क्योंकि मिक्स्ड है, मिक्स्ड में से वो कहीं से भी फाइबर उठा सकता है। तो एक नर्व के अंदर किसी एक रेमस के फाइबर होंगे कि मल्टीपल रेमाय के फाइबर्स हो सकते हैं। आप मिलके खाएंगे तो आपकी प्लेट में 4 किस्म का खाना हो सकता है। हालांकि वन डिश में आप तो घर से एक लाए हो, सिर्फ नर्व तो एक है, रेमस तो एक है, लेकिन प्लेक्सस की वजह से नर्व निकलने वाली को चांस है कि उसमें 3 रेमाय के फाइबर्स हो सकते हैं। आपकी प्लेट में अगर 4 लोग मिलके वन डिश लेके आए हो, 4 लोग मिलके खाते हो, तो प्लेट में चांस है कि मैक्सिमम 4 डिशेज आपकी हो सकती हैं उसके अंदर, हालांकि आप एक लेके आए हैं। ये प्लेक्सस का फायदा है। और आप बोलेंगे ऐसा फायदे होने से मुझे क्या फायदा मिलेगा? आपको फायदा मिले ना मिले, आपकी नर्व, आपके मसल को फायदा दे देंगी, क्योंकि जो नर्व अंदर दाखिल होगी उसके अंदर एक रेमस के नहीं 3-3, 4-4 रेमाय के की वैरायटी ऑफ द फाइबर्स होगी, और जितनी वैरायटी ज्यादा होगी ब्रेन से उतनी ज्यादा बेटर कमांड ले सकेगा, और जिस मसल में दाखिल हुआ है वो मसल मल्टीपल एक्शंस कर सकेगी। वरना अगर एक ही टाइप का होता, आपकी प्लेट में आप ही की डिश होती, तो भरा हुआ होता प्लेट, वैरायटी उसमें वेरिएशन नहीं होती, समझ गए? वो आपका बैलेंस डाइट नहीं होता। लेकिन आप मिलके खाएंगे तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम आपकी भले हो जाएगी, लेकिन दूसरे का खाएंगे तो आपकी मिला के क्वांटिटी भी आपकी वैसी ही वैसी रहेगी, लेकिन उसमें वेरिएशन बढ़ जाएगी। तो कुदरत ने इस किस्म का सिलसिला दिया हुआ है, खास तौर पे कहाँ, जहां मसल्स के अंदर इस किस्म की वैरायटी ऑफ एक्शंस होना बड़ा जरूरी है। और वो कहां ज्यादा होता है? लिम्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा काम किधर होता है? लिम्स में होता है। तो वहां वैरायटी ऑफ एक्शंस होने की वजह से, हाँ, तो लिम्स में उमूमन प्लेक्सस बनते हैं, और प्लेक्सस जब भी बनेगा तो कौन से रेमाय बनाएंगे? एंटीरियर रेमाय बनाएंगे, और खास तौर पे कौन से वाले एंटीरियर रेमाय? जो आपके लिम्स में जाते हैं, वो बनाते हैं प्लेक्सस। क्यों? क्योंकि वेरिएशन ऑफ द एक्शंस उन नर्व्स में चाहिए जो आपके लिम्ब के मसल्स को सप्लाई करें। तो जहां पर उमूमन आप इस किस्म के प्लेक्सस आप देखने वाले हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्लेक्सस सिर्फ लिम्स में ही बनते हैं। प्लेक्सस सर्वाइकल के जो ऊपर 4 वाले हैं ना, वो भी प्लेक्सस बनाते हैं, वो भी प्लेक्सस बनता है। कौन से नर्व्स? ऊपर की 4 सर्वाइकल नर्व, C1, C2, C3 एंड C4। लेकिन उसके भी कौन से रेमाय? प्लेक्सस कभी भी पोस्टीरियर रेमस से नहीं बनेगा, उसके भी एंटीरियर रेमाय, उसके भी एंटीरियर रेमाय प्लेक्सस बनाएंगे। उस प्लेक्सस को, क्योंकि वो सर्वाइकल के ऊपर की 4 नर्व्स के एंटीरियर रेमाय मिलकर नेक में प्लेक्सस बना रहे हैं, उन प्लेक्सस को हम, उस प्लेक्सस को कहते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस। क्या कहते हैं? अब ये स्पाइनल नर्व टिपिकल समझ गए आप। अब मैं इस ऊपर की 4 सर्वाइकल नर्व्स के एंटीरियर रेमाय को जोड़ के एक प्लेक्सस बनाने वाला हूं, उसको हम कहते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस। क्या करने वाला है वो? नेक की मस्कुलेचर को सप्लाई करेगा और वहां की स्किन को भी सप्लाई करेगा। पोस्टीरियर रेमाय कहाँ रहेंगे? वो तो पीछे ही रहेंगे। एंटीरियर रेमाय आगे आएंगे, और आगे आने के साथ क्या करेंगे? स्किन को भी और नेक के मसल्स को भी, और साथ में ऊपर भी जाएंगे। इधर मैंने बताया था ना, ये वाला एरिया जो होता है ना, ये वाला एरिया छोड़ के ये पीछे, अगर आप यहां से कोरोनल सेक्शन काटें, आगे का आधा है ये ग्रे, तो ये क्रेनियल नर्व्स है, और पीछे जो ग्रे वो फिर स्पाइनल नर्व्स। कौन सी स्पाइनल नर्व? यही 4। अगर बीच में है तो डार्सल रेमस, और थोड़ा आगे है तो वेंट्रल रेमस। लेकिन वेंट्रल रेमस ऐसे हैं कि वो प्लेक्सस भी बनाएंगे, तो यहां प्लेक्सस भी बनाएंगे। आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि लिम्स वाले प्लेक्सस बनाते हैं। नहीं, ये 4 भी बनाते हैं, और ये जो 4 बनाते हैं उस प्लेक्सस को हम डायग्राम पे ले आते हैं। बनाने का मकसद यही है कि इसके जो मसल्स हैं वो तो आपने पहले ही देख लिए हैं लोकोमोशन वगैरह में, जब आप मस्कुलर सिस्टम कह रहे थे कि ये नेक का मसल, ये फला ये मसल्स होते हुए इनको सप्लाई करता है। मैं यहाँ से इसलिए लेने जा रहा हूँ कि ये प्लेक्सस इसलिए भी बनता है कि एक तो नेक के जो मसल्स होते हैं, जो नेक की मूवमेंट होती है, कोई स्किल तो नहीं है नेक की मूवमेंट में, लेकिन इनडायरेक्टली स्किल है, क्योंकि नेक पे टिका है मेरा हेड। एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये है क्योंकि नेक की मूवमेंट के साथ विजडम है, क्योंकि नेक के मूवमेंट के साथ हमारी आंखें, हमारा मूवमेंट, फेस का मूवमेंट इनडायरेक्टली, ये मैं भले मूव ना करूं, लेकिन अगर नेक को मूव करूं तो मेरा हेड पूरा मूव हो जाता है, और हेड मूव हो जाता है तो मेरी आंखें भी मूव हो जाती है। हालांकि मैंने आंखों को कंट्रोल नहीं किया जैसे, वरना मैं ऐसे कर सकता हूं, ऐसे करूंगा मैं ज्यादा से यहां तक देख सकता हूं, लेकिन मैं अपने पीठ पीछे अगर देखूं तो कैसे करूं? ऐसे, फिर मुझे नेक की जरूरत पड़ी। इसका मकसद ये है कि हेड में बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके मूवमेंट को एडजस्ट करने के लिए भी नेक की जरूरत पड़ती है। तो नेक भी समझ लो कि इतना इंपॉर्टेंट है जितने
लिम्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके एंटीरियर रेमाय को भी लाजमन क्या बनाना पड़ा है, प्लेक्सस बनाने पड़े। और शायद इसलिए भी नहीं, एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से प्लेक्सस बनाना पड़ा है, जो मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ एक्चुअली, वो है कि इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व निकलती है, हाँ, फ्रेनिक नर्व जिसको कहते हैं, उसका टारगेट होता है डायफ्राम, और डायफ्राम हमारा प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन है। और इस वो इत्तेफाक से वो स्केलेटल है तो कहाँ से सप्लाई करोगे, ज़ाहिर है स्पाइनल नर्व से। और कहाँ से भाई, स्पाइनल नर्व तो यही है, कहाँ से उठाया हमने उनको, सर्वाइकल प्लेक्सस से। और सर्वाइकल प्लेक्सस से स्पाइनल नर्व, फ्रेनिक नर्व जब आपने उठाई वो डायफ्राम की तरफ लेने जा रहे हो, और वो इतना इंपॉर्टेंट मसल है कि जिसके बगैर आप रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, तो क्या नर्व उठा के एक ही रेमस से उठा के ले आओगे कि मल्टीपल रेमाय दोगे उसमें? मल्टीपल रेमाय क्यों दोगे कि खुदा न खास्ता अगर उसमें से कोई एक रेमस खत्म भी हो गया तो नर्व अभी भी काम कर रही होगी। तो ये मल्टीपल रेमाय होने का ये भी फायदा है। तो नेचर ने उनको दिया है क्योंकि डायफ्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और इसके फ्रेनिक नर्व को हम सिंगल नर्व नहीं देंगे, सिंगल रेमस नहीं, मल्टीपल रेमाय देंगे। और मल्टीपल रेमाय देने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्लेक्सस बना। इसलिए भी सर्वाइकल प्लेक्सस बना है, वरना तो प्लेक्सस लिम्स में ही बनते हैं और तो कहीं बनते ही नहीं है, लेकिन सर्वाइकल में बनाना पड़ा है मजबूरन। उसकी एक वजह फ्रेनिक नर्व भी है। अब मैं प्लेक्सस बनाने जा रहा हूं, तो स्पाइनल नर्व आपने समझ लिया। अब स्पाइनल नर्व को बैठ के हम कुछ प्लेक्सस को लेके आएंगे, और उन प्लेक्सस से कुछ इंपॉर्टेंट नर्व्स मैं बताऊंगा जिनकी इंजरीज बड़ी कॉमन है, ताकि ये पूरा आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाए पूरा। अब जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि ये एक टिपिकल स्पाइनल नर्व है, इनके एंटीरियर रेमाय आप देख चुके हो। अब इन एंटीरियर रेमाय को बैठ के हम नेक में देखना चाहते हैं, ऊपर की चार नर्व्स को, 4 सर्वाइकल को। देखें आप, वो बनाने जा रही हैं प्लेक्सस। अब देखिए यहां पर हम नेक बनाने जा रहे हैं। अब देखिए ये हेड है, यहां से मैं ले रहा हूं, ये चिन है, ये मैंडिबल है, और यहां पर इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊंगा तो नीचे आएगी क्या, क्लेविकल। देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही है ना, ये कौन है, मैंडिबल। ये क्लेविकल नहीं है, मैंडिबल। ये मैंडिबल, और सीधा यहां पर पैरेलल इसके क्लेविकल। तो नीचे यहां ले आएंगे तो क्लेविकल। अगर ये क्लेविकल है तो क्लेविकल के सेंटर में जहां क्लेविकल आर्टिकुलेट करेगा वहां स्टर्नम, मैन्यूब्रम स्टर्ना जिसको हम कहते हैं, ये मैन्यूब्रम स्टर्ना, ये हमारा क्लेविकल है। ये चिन्ह है, ये नीचे मैन्यूब्रम स्टर्ना है। ये सीधा है कि कर्व्ड है, तो ये कर्व करके आप इसे समझ ले। और इसके साथ आप यहां से देख रहे हो, यहां से उठते हुए ये मसल था आपका, मसल दिखाया था आपको, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल, शाबाश, ये स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल है, ठीक है। और थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर ट्रेपेजियस मसल। ये साइड से हम यहां पर ये नेक देख रहे हैं, यहां से राइट के साथ, ठीक है, ये इस तरीके से। अब ये पूरा जो देख रहे हैं ये नेक है। इस मसल को थोड़ा सा मैं काट देता हूं, यहां से अंदर जाएंगे, मसल को उठा के यहां जाएंगे तो अंदर वर्टिब्रल कॉलम होगा, ठीक है ना। अंदर डीपली क्या होगा, यहां पर वर्टिब्रल कॉलम है। अब अगर ये वर्टिब्रल कॉलम है यहां पर, तो इधर से क्या निकल रही हैं, नर्व्स, ठीक है। अगर नर्व्स यहां से निकल रही हैं तो आप यहां से बना सकते हो, चलो जैसे पहली नर्व है, इसका सेंसरी रूट, मोटर रूट, ये मिक्स्ड नर्व, छोटा सा पोस्टीरियर रेमस पीछे छोड़ा और एंटीरियर रेमस आगे ले आए। ये कौन सी नर्व है, C1, SEC2 भी, पोस्टीरियर रेमस पीछे छोड़ा, एंटीरियर रेमस आगे ले आए। ये कौन सी, C2, अब ये है C3 और ये C4, ठीक है। ये कौन से रेमाय हैं, एंटीरियर रेमाय। ये अपने अपने ब्रांचेस बनाएंगे। अब ये अपनी अपनी ब्रांचेस बनाएंगे। ये C1 है तो C1 का कुछ फाइबर ऐसे ऊपर चला जाएगा, ऐसे C2 C3 के साथ मिलके यहाँ आएगा, वगैरह वगैरह। वहाँ हम नहीं जा रहे। अब ये प्लेक्सस वगैरह बन जाता है, किधर है, नेक में है। ये प्लेक्सस कहाँ बना है, नेक में है। बात कर रहे हैं किसकी, सर्वाइकल प्लेक्सस की। लेकिन ये जितनी भी नर्व्स जा रही हैं, इन नर्व्स में ये जो आप यहां पे देख रहे हो ना, C3 सब कुछ कर रही हैं, जो भी है प्लेक्सस बना हुआ है। C3 के काफी फाइबर्स, काफी तो नहीं, यूं समझ लो कि 10% के करीब करीब फाइबर C3 के नीचे लटक जाते हैं ऐसे। ये किसके फाइबर ला रहा हूं मैं, ठीक है, ये C3 के।
C3 की देखा देखी, जब C4 इसको देखेगा तो ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ये देगा, ये 80% कंट्रीब्यूशन इसकी है, 10% कंट्रीब्यूशन C3 की है, C4 ह्यूज कंट्रीब्यूशन। और इसके देखा देखी कहीं ये नर्व आगे चल के ज्यादा डैमेज होने के चांसेस ना बन जाएं, C5 भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट, ये भी कंट्रीब्यूट करने जा रहा है। वो कहता है यार थोड़ा सा मेरा भी ले जाओ, चलो हो सकता है आगे से काम ना आ जाए हमारा भी, ज्यादा नहीं 10% ये भी, लेकिन सबसे ज्यादा किसका? C4 का। और ये जो बन गया है ना ये, अब ये नर्व कहां से स्टार्ट हुई है? आपके नेक से। किसकी ब्रांच है? सर्वाइकल प्लेक्सस की। रूट वैल्यू इसकी क्या है? C3, C4 बिग वन, C5 स्मॉल आल्सो। और यहां से एक नर्व क्रिएट हो गई, 3 डिफरेंट रेमाए के फाइबर्स लेके नीचे जा रहे हैं। इसमें सेंसरी फाइबर्स भी हैं, मोटर भी हैं, क्योंकि एंटी रेमा है ना, मिक्स्ड फाइबर, ये मिक्स्ड नर्व है। और ये यहां से अब नीचे उतरी है, अब नेक को छोड़ेगी, ये थोरैक्स में एंटर होगी। तीनों उसके रूट वैल्यूज यहां पर सारे अपने फाइबर, सेंसरी एंड मोटर बोथ। कौन से रेमाए से उठी है ये? सर्वाइकल के सिर्फ एंटीरियर रेमाए से। पोस्टीरियर तो हमने पीछे छोड़ दी, उनका तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो रुक गए वहां पर, वो अपने अपने छोटे से मसल के टुकड़े को और ऊपर से थोड़ी सी स्किन को सप्लाई करेंगे, इनका कोई रोल ही नहीं है। असल रोल एंटीरियर रेमाए का है। और एंटीरियर रेमाए ने क्या किया? और भी बहुत ब्रांचेस देंगी, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, हमने इसको दिया। और ये जो है यहाँ पर थोरैक्स में एंटर हुई, और ये थोरैक्स में एंटर होने के बाद बीच में हार्ट बैठा हुआ है, दोनों साइडों से निकल जाएगी, और निकलने के बाद जैसे पार्टीशन यानी डायफ्राम आ गया, उसमें सुराख करके फैल जाएगी। अगर राइट वाली होगी तो राइट साइड से, लेफ्ट वाली होगी तो लेफ्ट साइड से। और जो आपका मस्क्यूलेचर है डायफ्राम का, उसको सप्लाई करेगी। डायफ्राम की अकेली मोटर सप्लाई ये है, अगर ये गई तो डायफ्राम पूरा गया। न सिर्फ मोटर सप्लाई है, बल्कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द डायफ्राम की सेंसरी सप्लाई भी यही है। ये समझ रहे हैं आप? इस नर्व का नाम है फ्रेनिक नर्व। इसको फ्रेनिक नर्व कहते हैं। इट्स अ ब्रांच कमिंग फ्रॉम द सर्वाइकल प्लेक्सस। C3 बिग 4 एंड स्मॉल 5 आल्सो। हालांकि 5 इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता है, 5 ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किए किसको? फ्रेनिक नर्व को। अदरवाइज सर्वाइकल प्लेक्सस की दूसरी नर्व्स में C5 कंट्रीब्यूट नहीं करता। C5 बेसिकली एक और प्लेक्सस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेकियल प्लेक्सस है जो अपर लिम्ब में जाएगा। असल खेल जो है सर्वाइकल प्लेक्सस में 4 नर्व्स का है। हाँ, फ्रेनिक जा रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व है, तो पड़ोसी ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दिया है, और 5 ने कंट्रीब्यूट थोड़ा सा कर दिया है, वरना 5 दरअसल ब्रेकियल प्लेक्सस के लिए। आपको बताया था ना मैंने, सर्वाइकल में 4 नर्व्स होती हैं, यहाँ 5वीं भी आ गई है, तो 5वीं के थोड़े से फाइबर्स फ्रेनिक में चले जाते हैं, ताकि इसको और सिक्योर किया जा सके कि खुदा न खास्ता अगर सर्वाइकल प्लेक्सस की 2 रेमाए ऊपर से कट भी जाए ना, फिर भी डायफ्राम में कुछ ना कुछ सलाहियत अभी भी होगी। ये किस वजह से हुई? 5 के कंट्रीब्यूशन की वजह से। समझ गए? तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं फ्रेनिक नर्व। और ये इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? सर्वाइकल प्लेक्सस है। लेकिन मैंने बताया कि जो असल प्लेक्सस आ रहे हैं वो होते हैं जो लिम्स की तरफ जा रहे हैं। जो लिम्स की तरफ जा रहे हैं असल प्लेक्सस वो होते हैं। कहां से ये आएंगे? अब जो नेक्स्ट 4 नर्व्स होंगी। नेक्स्ट 4 माने कौन सी? 5, 6, इसका पोस्टीरियर रेमस, और ये फिर एंटीरियर, फिर 7 पोस्टीरियर रेमस एंटीरियर, फिर 8 पोस्टीरियर एंटीरियर, और इसके साथ T1 भी। अब की बार T1 भी। जैसे ना सर्वाइकल प्लेक्सस को, हमेशा प्लेक्सस ऐसे होते हैं कि वो स्पेसिफिकली अपने एंटीरियर रेमाए से बनते हैं, लेकिन थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन उसको नेक्स्ट एंटीरियर रेमस भी देता है। ये तकरीबन सारे प्लेक्सस के साथ है। जैसे अभी क्या दिखाया आपको कि सर्वाइकल प्लेक्सस 4 सर्वाइकल नर्व्स, 5वीं ने टच दिया उसको। ब्रेकियल प्लेक्सस 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, और T1 भी दे देगा। समझ गए? ऐसे ही जब हम नीचे आएंगे तो कुछ और चीजें मिलेंगी यहां पर। अब ये यहां पर है। अब आपके हाथ में क्या मौजूद है? अब आपके हाथ में मौजूद है अब C5 का एंटीरियर रेमस, C6 का एंटीरियर रेमस, 7 का, 8 का और T1 का। ये एंटीरियर रेमा हमारे मुट्ठी में पड़ने। अब इन एंटीरियर रेमा को हम क्या करने वाले हैं? लिम्ब में दाखिल करने वाले हैं। आए नेक से हैं, क्योंकि नेक के साइड से लिम्ब निकलती है, तो जिम्मेदारी भी सर्वाइकल नर्व्स की है कि लिम्ब को सप्लाई करें यहां से। और क्योंकि
नेक और थोरेक्स के जंक्शन पे है तो टॉप थोरेसिक नर्व इनकी तरफ जाएगी। कौन सी वाली? T1। तो ये यहां से निकली है नर्व। अब ये यहां से तो ये क्या आ रहे हैं? एंटीरियर रेमाय आ रहे हैं। और ये जो एंटीरियर रेमाय आ रहे हैं तो मैं आपको यहां से एंटीरियर रेमाय दिखा रहा हूं, क्योंकि अब जो प्लेक्सस बनने जा रहा है वो है ब्रेकियल प्लेक्स। ब्रेकियम जो है ना वो आर्म को कहते हैं, आर्म अपर लिम्ब को कहते हैं ब्रेकियम, इसलिए इस प्लेक्सस का नाम भी पड़ गया है ब्रेकियल प्लेक्सस। कहां से बना है? एंटीरियर रेमाय ऑफ अपर 4 सर्वाइकल, अब लोअर 4 सर्वाइकल नर्व से, माने C5, C6, C7, C8 और T1 से। ये 5 एंटीरियर रेमाय मिलके प्लेक्सस बनाने जा रहे हैं। अब जब प्लेक्सस बनाने जा रहे हैं तो अभी तो एंटीरियर रेमाय नेक में है, तो स्टार्ट तो जहां से हो गई। अब एंटीरियर रेमाय नेक में है तो क्या नेक में रहेंगे कि ये ऑब्लिकली डाउन आएंगे और अपर लिम्ब में इंटर हो जाएंगे? लेकिन अपर लिम्ब में जब इंटर होंगे तो पहले इस एरिया में आएंगे, एक्जिला में। कौन? एंटीरियर रेमाय। लेकिन एंटीरियर रेमाय ऐसे नहीं है कि अकेले अकेले आ जाएंगे। मैंने बताया था ना कि लिम्ब में दाखिल होने से पहले ये आपस में प्लेक्सस बनाना शुरू कर देते हैं यहां से। तो अब ऊपर से जैसे एंटीरियर रेमाय यहां से आए तो आप देखेंगे कि एंटीरियर रेमाय अगर यहां से मिले हैं आपको, अब मैं इस नर्व को हटा रहा हूं यहां पर, क्योंकि अब हमारा टारगेट ये प्लेक्सस नहीं है। अब ये हटा दिया। अब ये आपकी नर्व जा रही है, ये है हमारी C5 की एंटीरियर रेमस, ये C6 की, 7, 8 और T1। ये जैसे नर्व्स आती है नेक में थोड़ा सा लोअर डाउन, पता चलता है कि ऊपर की जो 2 एंटीरियर रेमाय हैं ये आपस में जुड़ के सिंगल बन जाती है, यानी ऐसे। नीचे की 2 एंटीरियर रेमाय जो हैं ये आपस में मिलके सिंगल बन जाती है। सिमेट्रिकली देखें कैसे हैं टोटल 5। ऊपर की 2 मिलके एक बन गई, नीचे की 2 मिलके एक बन गई। जो बीच वाली को जगह नहीं मिली तो वो कहेगी चलो मैं सिंगल ही चलती हूं। अब यहां से 5 चली है तो यहां कितनी बन गई? 3। अब ये जहां से स्टार्ट किया है आपने तो वो क्या थी? एंटीरियर रेमाय। अब क्या एंटीरियर रेमाय रहे कि अरेंजमेंट चेंज हुआ है? तो ये जो एंटीरियर रेमाय है यहां से प्लेक्सस की शुरुआत हो चुकी है। तो एंटीरियर रेमाय को हम नाम दे देते हैं रूट्स। किसके रूट्स? प्लेक्सस के रूट्स। कौन सा प्लेक्सस? ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ये कहलाती हैं। तो एंटीरियर रेमाय विल बी हाउ मेनी? 5 एंटीरियर रेमाय, दे विल बी कॉल्ड एज रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ये रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है। ये नेक में से नीचे आते आते क्या 5 रहेंगी कि 3 हो जाएंगी? तो इन 3 का नाम पड़ जाता है ट्रंक्स। क्या बोलते हैं? ट्रंक्स ऑफ व्हाट? ब्रेकियल प्लेक्सस। तो हम इसको ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं। तो ये ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है। माने इसका मकसद ये हो गया कि ये जो ऊपर से ये बनाया, ये और ये, तो ये क्या बन गए हैं? ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ये आपने देखा C5 और ये C6 आपस में मिल गए, ये सीधा आ गया और ये आपस में मिल गए। तो कितने ट्रंक्स बने? 3 ट्रंक्स बने। और ये 3 ट्रंक्स अब अपर लिम्ब में दाखिल होने जा रहे हैं। कैसे दाखिल होंगे? ये क्लेविकल है, इसके पीछे से दाखिल होकर एक्जिला में आ जाएंगे। लेकिन ये जैसे प्लेक्सस एक्जिला में आने की कोशिश करता है, अभी क्लेविकल के पीछे ही है, तो इसमें सब फाइबर्स, कोई पोस्टीरियर रेमस का फाइबर है क्या इसमें? नहीं, एंटीरियर रेमस के फाइबर्स हैं सारे एंटीरियर, क्योंकि प्लेक्सस एंटीरियर रेमा के अलावा होता ही नहीं। तो ये यहां से जैसे यहां आ गया, इसको पता चला कि ये जो बाहर लिम्ब है, इस लिम्ब के एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस है। हम तो हैं ही एंटीरियर रेमाय। होना तो ये चाहिए था कि एंटीरियर रेमाय यहां है, हम एंटीरियरली सप्लाई करते हैं और पोस्टीरियर रेमाय को भी बोलते कि हमारे साथ चलो, तुम्हें पोस्टीरियर साइड पे सप्लाई करना है। लेकिन वो तो आया ही नहीं, तो इसका मकसद पोस्टीरियर भी कौन जाएगा? एंटीरियर रेमाय ही जाएंगे। तो इसका मकसद ये कि यहाँ आने से लम्हा भर पहले क्लेविकल के पीछे डिसाइड कर लो कि कुछ फाइबर पीछे भेजेंगे और कुछ फाइबर। तो इसका मकसद है कि हर ट्रंक जो होगा वो अकेला अकेला जाएगा कि इस ट्रंक के 2-2 टुकड़े हो जाएंगे, थोड़े फाइबर आगे थोड़े फाइबर पीछे। तो ये क्या करेगा? ये ट्रंक जो होगा वो 2 हिस्सों में बटेगा सबका। किस जगह बैठ के? लिम्ब में अंदर दाखिल होने से जरा पहले, माने क्लेविकल के पीछे। तो ये जो 2-2 टुकड़े हो गए हैं ना एक एक ट्रंक के, इनको बोलते हैं डिविजन्स। क्या बोलते हैं? तो ये डिविजन्स कहलाती है, डिविजन्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। किसके डिविजन्स? ट्रंक्स के डिविजन्स। ये जो ट्रंक है ना यहाँ पर, इसको कहते हैं अपर ट्रंक, इसको बोलते हैं मिडिल ट्रंक, इसको बोलते हैं लोअर ट्रंक। और ये है इनकी अपनी अपनी डिविजन्स। कौन सी डिवीजन? आधा होगा जो आगे आएगा
एंटीरियर डिवीजन, आधा पीछे जाएगा तो पोस्टीरियर, इसका आधा आगे आएगा एंटीरियर, पीछे जाएगा पोस्टीरियर, इसका पोस्टीरियर, ये इसका एंटीरियर। क्यों? पीछे भी तो जाना है ना, पीछे कोई और तो नहीं आएगा, यही होगी एंटीरियर रेमा। तो दो टुकड़े करोगे, यूँ समझ लो कि 2000 फाइबर यहाँ तो 2000 पीछे, 2 इधर 2000 पीछे, ऐसे आएगा। ये कहाँ बैठ के तय हुआ है? क्लेविकल के पीछे बैठ के। अब आप एक्जिला में इत्मीनान से दाखिल हो जाओ। अब जो दाखिल हो जाएंगे तो मैं क्या करूं, ये जो एंटीरियर रेमस है, ट्रंक कौन सा है? अपर, और अपर ट्रंक में कितने एंटीरियर रेमा है? कौन सी एंटीरियर रेमा ने कंट्रीब्यूट किया है? C5 और C6 ने, समझ लें। तो ये एंटीरियर रेमा कहां जाएंगे? एंटीरियर साइड पे। दूसरे का एंटीरियर रेमस भी किधर जाएगा? वो भी एंटीरियर साइड पे। और तीसरे का भी किधर जाएगा? वो भी एंटीरियर। लेकिन पोस्टीरियर किधर जाएंगे? सबके पीछे पीछे जाएंगे। अब अगर तुम इस एंटीरियर रेमस को सीधा, इस एंटीरियर डिवीजन को सीधा लेके आते हो तो रूट वैल्यू तुम्हें मिलेगा 5 और 6, समझ गए ना। और इसमें अगर लेके जाते हो तो रूट वैल्यू सिर्फ मिलेगा क्या? C7। तो प्लेक्सस का तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है हमें। ये मैं लेके गया, ये C7 से मिला, तो इसका मकसद है कि इससे अगर कोई नर्व उठी तो उसमें तो फाइबर सिर्फ क्या होंगे? C7 के। और C7 की किसी मसल में दाखिल हो गई तो फंक्शन तो ज्यादा नहीं कर पाएगी। क्यों? फाइबर, एक टाइप के फाइबर मौजूद हैं, एक टाइप के फाइबर होंगे तो एक ही फंक्शन होगा उस मसल का। वे कहते हैं वो तो दूसरे भी फंक्शन कर सकती है, दूसरे फंक्शन कर ही नहीं सकेगी। अगर करना है तो उसमें एक और नर्व डालनी होगी, तो एक एक मसल में 3-3 नर्व आपको डालनी होगी। हमें ऐसा नहीं करना है। तो इसका मकसद है कि ये जो एंटीरियर डिवीजन है ना, इनको भी क्या करो? आपस में मिक्स कर दो। अब ऐसे आपस में मिक्स करो कि ऊपर की 2 एंटीरियर डिवीजन है आपस में जोड़ दो। तो कितनी एंटीरियर डिवीजन इस्तेमाल हो गई है? कितनी? तो तीसरी वाली जो है, क्योंकि उसके साथ अब मिलने वाला कोई नहीं है, तो उसको तुम अकेला ही नीचे लेके जाओ। लेकिन चलो ठीक है, अकेला भी नीचे लेके जाओगे तो फायदा इसका क्या होगा? फायदा उसका होगा तो कम से कम उसके अंदर कौन सी डिवीजन के फाइबर्स होंगे यहां पर? और तो 2 होंगे ना। चलो 2 हैं, 2 भी बहुत हैं। ये मैं लेके आता ना ऐसे अकेला, तो इसमें सिर्फ C7 के फाइबर होते हैं। तो इसके लिए मजबूरी है कि किसके साथ ज्वाइन कर जाए? पहले वाले के साथ करे। अब जो यहां से कोई नर्व उठी तो उसमें फाइबर्स 3 होंगे, और उससे जो नर्व उठी उसमें 3 फाइबर और 3 फंक्शन कर सकेगी। ये बात आ गई समझ में? इसको कोई मजबूरी नहीं है, इसमें पहले से ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो यहां पर, तो ये इस वक्त यहां पर एंटीरियर यहां लटका हुआ है। एंटीरियर डिवीजन, क्या कोई फाइबर पोस्टीरियर डिवीजन से उठा सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एंटीरियर डिवीजन आगे आएंगी, आगे वाली आगे वालों के साथ। अगर आपको कराची जाना है तो आप किसी फ्रेंड से, उस फ्रेंड से लिफ्ट ले लेंगे जो कराची जा रहा है। अगर जा रहा है कोई दूसरी तरफ तो ये नहीं कि अच्छी गाड़ी है तो उसमें बैठ जाएं आप कि ये जा रहा है इसकी गाड़ी अच्छी है। भाई गाड़ी अच्छी है, वो नवाबशाह जा रहा है, चलो नवाबशाह ही सही, गाड़ी तो अच्छी है ना। ऐसे कोई करेगा क्या? वो बेवकूफ होगा। वो कहेगा कि कराची जा रहा है, भले गधा गाड़ी ही क्यों ना हो, उस पर कमरे मंजिल की तरफ तो शक्ल है उसकी, देर से ही पहुंचेंगे। वहां तो पहुंचेंगे ही कहीं नहीं आप, वो तो आप नवाबशाह चले जाएंगे। अच्छी गाड़ी की वजह से बैठ जाएं क्या उस पर? जैसे उमन अच्छे जायके की वजह से हम चीजें खा लेते हैं और पता चलता है कि फिर हमारा असर क्या हो जाता है। तो यहां पर ये इस तरीके से ये है, ये एंटीरियर रेमा है। तो ये जो 2 बन गए हैं ना, ये लिम्ब में अंदर गए हैं, इनको बोलते हैं कार्ड्स। क्या बोलते हैं? तो अभी यहां पर ये कार्ड बन गया आपका। क्या 2 कार्ड होंगे कि पोस्टीरियर डिवीजन है अभी बाकी है? ये पोस्टीरियर डिवीजन है किसकी? अपर ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीजन, मिडिल की पोस्टीरियर डिवीजन और लोअर की। ये तीनों जुड़ के एक ही कार्ड बना देंगी। तो कितने कार्ड लटक रहे हैं इस वक्त? 3 कार्ड। ये 3 कार्ड जाते हैं आपके अपर लिम्ब में। अब इन 3 कार्ड से, ट्रंक से, इवन रूट से भी कुछ ब्रांचेस तुम उठा सकते हो। और जब ब्रांचेस उठाने की कोशिश करोगे तो उसमें एक किस्म के फाइबर होंगे कि 2-2, 3-3 हो सकते हैं। और जो पोस्टीरियर रेमस से उठाओगे उसमें तो 5 ही हो सकते हैं। अब इससे ज्यादा देखो प्लेक्सस का और क्या फायदा हो आपको। अगर मैं यहां से कोई नर्व उठाऊं, यहां से कोई नर्व उठाऊं, तो चांस क्या है? 5 की 5 फाइबर उठा सकती है। और क्या उसके फंक्शंस होंगे आप अंदाजा तो लगाएं वहां से उठने वाली किसी नर्व के। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि नर्व उठे तो 5 की 5 ले। भी बूफे में 5 हैं, आप 5 उठा सकते हो, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि 5 उठाना लाजमी है। 1 डिश आप कर रहे हैं, दस्तरखान पे 5 डिशेस पड़ी हुई हैं, क्या मजबूरी है कि 5 ही खाएं? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऑप्शन है। अगर खाना चाहूं तो खा सकता हूं। इसका मतलब ऑप्शन है, लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन ऑप्शन है। प्लेट है, आप 5 ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सभी में से ले लें।
लेकिन चाहे तो 4 ले सकते हैं, चाहे तो 3 ले सकते हैं। लेकिन अगर प्लेक्सस न बनता, डिशेज आप नहीं रखते और आपस में लड़े हुए होते, तो फिर तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं था एक्सेप्ट जस्ट टेकिंग यूर ओन डिश ओनली। फिर आपके प्लेट पे सिर्फ आपकी डिश होगी। ये कब होगा? जब प्लेक्सस होगा। जब प्लेक्सस होगा, कोऑपरेट करोगे, ये होगा, तो आपको अच्छी अच्छी नर्व्स मिलेंगी और खास तौर पे ये सारी चीजें। तो ये आप इस तरीके से बनाते हो। इस प्लेक्सस का नाम है सर्वाइकल ब्रेकियल प्लेक्सस। अब इस ब्रेकियल प्लेक्सस को नजर में रखो। उस ब्रेकियल प्लेक्सस से हम कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस आपको यहां से निकाल के दिखाते हैं और उनकी इंजरीज होती हैं और इंजरीज को आपको दिखाएंगे कि पेशेंट की क्या कंडीशन होती है यहां पर। अब जैसे यहां से मैं इंपॉर्टेंट ब्रांचेस आपको दिखा रहा हूं। अब जैसे ये एक पोस्टीरियर कार्ड है हमारा। पोस्टीरियर कार्ड कहां से स्टार्ट होगा? ये सारे कार्ड कहां मौजूद हैं? अभी एक्जिला में है और यहां से बंदरबांट शुरू होगी। कुछ ब्रांचेस यहां से, तो कुछ यहां से, कुछ यहां से। ये जो पोस्टीरियर कार्ड है, ये हायर अप एक ब्रांच देता है। ये पोस्टीरियर कार्ड बिहाइंड से चलता है एक्जिला से, ये बैक साइड से टर्न करेगा, क्योंकि आना बैक पे है ना, पोस्टीरियर कार्ड है तो आगे तो नहीं रहेगा, पीछे रहेगा। तो फोरआर्म में, आर्म में पीछे आता है, उसके बाद फोरआर्म में पीछे जाता है और हैंड के डार्सम पे फैल जाता है। तो जैसे ही इसकी ट्रेवलिंग होती है, ये ट्रेन जैसे चलती है ना पोस्टीरियर कार्ड की, सबसे पहले तो एक्जिला में ही एक ब्रांच दे देता है और जितनी ऊपर ब्रांचेस देगा उतने ही उसकी रूट वैल्यू ऊपर के नर्व्स वाली होंगी। हैं तो 7 के 7 फाइबर मौजूद, लेकिन जो ब्रांच वो ऊपर से देगा वो नर्व्स एंटीरियर में नीचे वाली होंगी कि ऊपर वाली होंगी। तो जो अब ब्रांच देने जा रहा है ना, वो ब्रांच तुम्हारे इस नेक जो है ना, किसका? ह्यूमरस का नेक। ये आपने पढ़े थे ना बोन्स यहां पे। तो ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस का नेक है। इस ह्यूमरस के नेक के अराउंड ये बिल्कुल ऐसे रिंग सी बना देती है। ये कौन सी? ये नर्व। किस कार्ड की नर्व है? पोस्टीरियर कार्ड की ये नर्व है। कहां से? थ्रू आउट डिस्टली के बहुत ही प्रॉक्सिमली। तो इस जगह से एक नर्व बन जाती है जो इस वक्त आपके डेल्टॉइड में छुपी हुई है। इसलिए कहते हैं कि अगर डेल्टॉइड में कोई इंजेक्शन गलत जगह पे लग जाए तो ये नर्व इंजर हो सकती है। इस नर्व का नाम है एक्सिलरी नर्व। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी नर्व। ये गलत इंजेक्शन लगने से भी इंजर हो सकती है, मिसप्लेस्ड इंजेक्शन। इसलिए कहते हैं कि डेल्टॉइड जो है, डेल्टॉइड के ऊपर वाले पोर्शन में आप इंजेक्शन लगाया करें, खासतौर पे बाहर वाले एरिया में। यानी इस डेल्टॉइड को 4 हिस्सों में अगर बांट दोगे तो अपर आउटर क्वाड्रेंट में आप इंजेक्शन लगाएंगे तो आप सेफ रहेंगे, लेकिन लोअर साइड पे लगाएंगे तो चांसेस हैं कि ये इंजर हो जाएगी। और अगर ये इंजर हो गई तो डेल्टॉइड मसल पूरा पैरालाइज हो जाएगा और आप देखेंगे कि 3 महीने बाद डेल्टॉइड मसल इतना जाके रह जाएगा, क्योंकि उसका फंक्शन ही नहीं होगा, एट्रोफी हो जाएगी उसकी। तो एक्सिलरी नर्व ये इस वजह से भी इंजर हो जाती है। और दूसरी ये है क्योंकि ये नेक ऑफ दी सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के अराउंड टर्न करती है, तो सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस ओल्ड एज में उमूमन फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोटिक हो जाता है, नाजुक हो जाता है, नरम हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, फ्रेजाइल होता है। इसलिए ऐसे गिरा, चोट आ गई, गया। और गया तो क्योंकि ये नर्व इसके अराउंड ट्रैप कर रही है, तो ये नर्व उमूमन इंजर हो सकती है। और तीसरी चीज ये होती है कि अगर आपका शोल्डर जो है वो अगर डिसलोकेट हो गया, वो आपको पता है शोल्डर हमेशा इंफीरियरली डिसलोकेट होता है, क्योंकि हर जगह से ये सपोर्टेड होता है बाय रोटेटर कफ एंड बोन्स। तो ये ऐसे जाओ। अब ये खुद अंदाजा लगाएं कि अगर ये इस तरीके से है, ये ऐसे हो गया तो नर्व ट्रैप हो जाएगी। शोल्डर डिसलोकेशन से, सर्जिकल नेक के फ्रैक्चर से या मिसप्लेस्ड इंजेक्शन से ये नर्व जो है वो खतरे में हो जाती है। और ये अगर हो गई तो कौन अफेक्ट होगा? डेल्टॉइड अफेक्ट होगा, क्योंकि डेल्टॉइड की अलोन नर्व सप्लाई ये एक्सिलरी नर्व है। उसके बाद ये जो पोस्टीरियर कार्ड है, ये थोड़े से काम करने के बाद ये गुजर जाता है कहां से? बैक साइड से। और बैक साइड से होने के बाद कहां आ जाएगा? बैक ऑफ फोरआर्म पे। ये सारे बैक ऑफ फोरआर्म के मसल्स जो होते हैं ना, ये इससे सप्लाई होते हैं, इस पोस्टीरियर कार्ड से, इसकी लंबी नर्व से। ये इतना लंबा जो कोर्स है ना, इस पोस्टीरियर कार्ड के इतने लंबे कोर्स का नाम होता है रेडियल नर्व। अब तो नर्व हो गई, अब तो नर्व का नाम डालना पड़ेगा। तो नाम क्या होगा इसका? रेडियल नर्व। क्या रूट वैल्यू? ये सारे के सारे जितने भी हैं ना, ये सब उसमें मौजूद होते हैं। all 5 anterior rami fibers are present in radial nerve। और ये रेडियल नर्व खुदा ना खास्ता मिड ह्यूमरस फ्रैक्चर हो जाए तो ये रेडियल नर्व इंजर हो जाती है। और रेडियल नर्व अगर यहां इंजर हो गई तो ये रास्ते में जितने मसल्स हैं आपके, ये सारे गए। ये समझ सकते हैं ना? अगर ये मसल्स चले गए फॉर एग्जांपल, तो ये कौन से मसल्स होते हैं? ये बैक साइड के मसल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? जो आगे वाले मसल्स होते हैं वो रिस्ट को क्या करते हैं? फ्लेक्स। और पीछे वाले मसल, तो ये क्या करवाती है? फ्लेक्शन कि एक्सटेंशन? एक्सटेंशन।
क्यों? क्योंकि पीछे वाले मसल्स होते हैं ना, ये बैक साइड से है ना, पोस्टीरियर कार्ड की नर्व ज़ाहिर है, तो पोस्टीरियर से इस तरीके से करती है। और खुदा न खासा ये इंजर हो गई तो क्या एक्सटेंशन हो सकेगी? तो इसका मकसद है कि आपके पेशेंट का जो रिस्ट होगा वो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सटेंशन उसकी चली जाएगी, एक्सटेंशन उसकी चली जाएगी, फ्लेक्शन तो होगी ना, तो अनअपोज्ड फ्लेक्शन हो जाएगी, तो पेशेंट ऐसे आएगा। ऐसी कंडीशन को कहते हैं रिस्ट ड्रॉप। क्या बोलते हैं? रिस्ट ड्रॉप मीन्स इट विल बी अनअपोज्ड फ्लेक्शन ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द एक्सटेंसर्स। एक्सटेंसर सारे थोड़े ही ना पैरालाइज होते होंगे, क्या होगा? उसकी सप्लाई कट ऑफ हो गई, सारे घरों की लाइन चली गई, तो क्या हुआ होगा? अभी ट्रांसफार्मर फट गया होगा यहाँ से, तो मेन सप्लाई चली गई, तो 6 7 8 घर जो है ना एट अ टाइम सब में शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ होगा ना, मेन सप्लाई गई है, तो यहाँ से अगर नर्व गई तो सारे एक्सटेंसर्स आपके चले गए, तो इसको कहते हैं रिस्ट ड्रॉप। तो रेडियल नर्व इंजरी में क्या हो जाता है? रिस्ट ड्रॉप। अगर आपसे कोई पूछे कि पापा रिस्ट ड्रॉप किस वजह से हुआ है, तो आप देखिए ना, ऐसे नहीं बोलें रिस्ट ड्रॉप रेडियल नर्व, रिस्ट ड्रॉप जैसे रेटिनल है। आप समझ लें कि रेडियल नर्व पोस्टीरियर साइड की नर्व है, पोस्टीरियर साइड पर एक्सटेंसर सप्लाई होते हैं, ये एक्सटेंसर सारे फंक्शन खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से फ्लेक्शन आपकी अनअपोज्ड हो जाएगी और पेशेंट इस हालत में आएगा। इसको हम कहते हैं रिस्ट ड्रॉप। ये 2 इंपॉर्टेंट पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की नर्व्स थी, पोस्टीरियर कार्ड की नर्व थी, लेकिन हमारे पास एंटीरियर कार्ड की भी नर्व्स हैं। खास तौर पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो ये कार्ड जो है आपका, क्योंकि 3 कार्ड है, एक तो पोस्टीरियर कार्ड है ग्रीन कलर का, और ये दोनों एंटीरियर कार्ड है, एक मीडियल और एक लेटरल। क्योंकि दोनों एंटीरियर हैं तो अब दोनों को एंटीरियर कह नहीं सकते, हम क्या कह सकते हैं? एक को कहते हैं एंटीरियर मीडियल और दूसरे को कहते हैं लेटरल। तो जो मीडियल कार्ड है उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व है, मीडियल कार्ड की नर्व। वैसे यहाँ से बहुत सारी नर्व है, मैं सब में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मीडियल कार्ड की एक नर्व है, बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व है, वो भी लंबी लंबी होते होते वो भी हैंड में एंटर हो जाती है। इस नर्व का नाम है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व, यू कॉल इट अल्नर नर्व, क्योंकि मीडियल साइड से ये नर्व है, रेडियल साइड से लेटरल वाली को हम रेडियल नर्व कहते हैं, ये अल्नर नर्व है। अल्नर नर्व आप इससे मीडियल एपिकंडाइल जो देख रहा है ना आपने, ह्यूमरस का मीडियल एपी जो पकड़ सकते हो इसे, इसके पीछे ये नर्व होती है जिसको रोल भी कर सकते हैं। ये उमन आपको देखा होगा, इस तरीके से करंट भी लग जाता है ये, है? इसको फनी बोन भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे जो ना इस तरीके से ऐसे ऐसे करके थोड़ा मजा लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे बच्चे नहीं, हमारे बच्चों को बेचारों को कहाँ पता होता है, ये जिनको पता होता है कि यहाँ ये नर्व है, वैसे ऐसे करने से थोड़ा सा मजा आता है, इसको हम फनी बोन कहते हैं। ये है मीडियल एपिकंडाइल और इसके पीछे मौजूद है, ये पता होता है कि ऐसे करने से करंट आ जाता है थोड़ा सा, ये अल्नर नर्व है। ये अल्नर नर्व में फाइबर्स होते हैं, कौन से? एंटीरियर रेमाई के फाइबर्स हैं, ज़ाहिर है एंटीरियर कार्ड जो है, मीडियल कार्ड एंटीरियर, तो ये यहाँ से एंटीरियर डिवीजन है, तो ये यहाँ से इसका टारगेट मेन फोरआर्म भी है, लेकिन इसका मेन टारगेट है हैंड। हैंड के मसल्स को 80% से ज़्यादा सप्लाई अल्नर नर्व से होती है। अल्नर नर्व अल्लाह ने आपको गिफ्ट के तौर पे दी हुई है, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स को सप्लाई, ये ग्रिप वगैरह ये सारी चीज़ें ये करता है। अगर ये अल्नर नर्व मीडियल एपिकंडाइल के फ्रैक्चर की वजह से कट जाए, हो भी सकता है, अगर ये हो जाए ना तो हैंड पे फर्क पड़ेगा। हैंड पे क्या फर्क पड़ेगा कि इसकी ये जो 2 फिंगर्स हैं ना आपकी, ये ऐसे हो जाएंगी, समझ गए? ये ऐसे हो जाएंगी, क्योंकि ये आगे से ये अल्नर नर्व का काम ये होता है कि ये फिंगर्स, हालांकि ये एक्सटेंसर नहीं है, लेकिन फिर भी इन फिंगर्स को क्या करती है? एक्सटेंड, फिंगर्स को सिर्फ एक्सटेंड करती है, बाकी हर चीज को फ्लेक्स करती है, फिंगर्स को एक्सटेंड। तो ये नहीं रही तो चारों फिंगर्स की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये 2 फिंगर्स जो है ना खासतौर पे क्या हो जाएंगे? ये कार्ड हो जाएंगे, पेशेंट ऐसे आएगा। इसको बोलते हैं किला। क्या बोलते हैं? किला, इसको हम किला कहते हैं। और ऐसे हैंड को कहते हैं किला हैंड। तो किला हैंड किसका प्रॉब्लम है? अल्नर नर्व का। तो ये हमेशा याद रखना कि इट्स द किला हैंड। दूसरी बड़ी नर्व जो है ना आफ्टर रेडियल इज द अल्नर। अब यहां से देखें कि ये 2 कार्ड्स हैं, इंटीरियर और ये जो दोनों कार्ड्स हैं, मीडियल और लेटरल कार्ड, दोनों इंटीरियर हैं। ये इस तरीके से होता है, ये 3 कार्ड है ना, ये ऐसे होता है, ऐसे। ये पीछे जो रह गया वो पोस्टीरियर कार्ड जो ग्रीन दिखाया, आगे जो रह गया ये दोनों एंटीरियर। अब 2 को एंटीरियर कह नहीं सकता, जो मेरे करीब वो मीडियल और जो दूर है वो लेटरल। ये अपनी ब्रांचेस देगा लेटरल, वो मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं। मीडियल की ब्रांच मैंने डिस्कस की, अल्नर, वो भी देगा ये भी देगा। ब्रांचेस देख के थक जाएंगे ना जब, तो ये कार्ड खत्म नहीं हो जाते हैं। ये कार्ड क्या करते हैं, इनके बचे हुए टुकड़े ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, समझ गए? ये आपस में अगर ये ज्वाइन हो गए, कौन ज्वाइन हो गया?
अल्नर नहीं, मीडियल और लेटरल कार्ड सब कुछ देने के बाद खुद ज्वाइन होके उन्होंने एक और लंबी नर्व बना ली। ये लंबी नर्व इस तरफ मीडियल साइड से कौन सी नर्व लटक रही थी अभी? अल्नर। लेटरल साइड से यहां घुमा के पीछे पीछे कौन लेके गया? मैं, रेडियल। तो अब जो नर्व मैं बनाऊंगा वो क्या लेटरल मीडियल होगी कि बीच में होगी? बीच में होने की वजह से इसका नाम है मीडियन नर्व। इसका आदि मीडियल नहीं, मीडियन, बीच में जो है। तो इसको हम कहते हैं क्या? मीडियल तो अल्नर है ना, तो इसको हम कहते हैं क्या? मीडियन नर्व। मीडियन नर्व क्योंकि यहां से लंबी से गुजर के ये भी हैंड में आएगी, लेकिन इसका मेन काम यह है कि फोरआर्म को ज्यादा सप्लाई और बचा हुआ 20% किसका? हैंड का, उसको ये सप्लाई। और हैंड का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला थंब वाला, और थंब का वो इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसको हम इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा? अपोजिशन, ये काम मीडियन को दिया गया है। हालांकि अल्नर नर्व इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड फॉर योर हैंड मसल्स एक्शंस, बट दैट इंपॉर्टेंट एक्शन हैज बीन हैंडेड ओवर टू मीडियन नर्व। तो अगर मीडियन नर्व, और ये मीडियन नर्व क्या करती है? यहां से आप देखें, ये आपका रिस्ट है, रिस्ट के ऊपर जाहिर है आपको पता है कि डीप फेशा, रेटिनाक्यूलम वगैरह होते हैं, और यहां एक टनल होता है। क्या होता है? टनल। क्यों? क्योंकि नीचे आपके हैंड के बोन्स हैं जो थोड़ी सी कर्व बनाते हैं, और ऊपर आपकी डी फेशा जो पास हो जाती है तो क्या बन जाती है? टनल बन जाती है। इस टनल में क्या पास होता है? ये देखें आपके ये टेंडन्स है ना, यहां से टेंडन्स पास होते हैं। कौन से टेंडन्स? जो आते ऊपर से हैं, जाते हैंड में हैं, जाते पीछे नहीं है, ऊपर से आते हैं और हैंड के फ्रंट में, पाम में जाते हैं। लेकिन पाम में जाते हैं तो ऐसे जाते हैं या डी फेशा के डीप जाते हैं? तो यहां से जब डीप जाते हैं तो डी फेशा यहां क्या बनाती है? उसके अंडरनीथ क्या होता है? टनल होता है। तो उस टनल से गुजरते हैं 8-9 टेंडन्स, सिर्फ टेंडन्स कि मीडियन नर्व यहां से पास होती है। तो जहां 9 टेंडन्स होंगे और मीडियन नर्व भी होगी, और खुदा न खासा वो जो 9 टेंडन्स है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इस मीडियन नर्व को दबा नहीं देंगे क्या? समझ गए? तो किस में दबाएंगे? कार्पल टनल में। और अगर कार्पल टनल में ये दब गई तो क्या कहते हो? ये हैंड के ये जो आपको 20% मसल्स थे, क्या पैरालाइज नहीं हो जाएंगे? क्या अपोनेंस पोलिसिस जो था खत्म नहीं हो जाएगा? वो भी पैरालाइज हो जाएगा। सेंसेशन भी यहाँ की चली जाएगी, ना अपोजिशन कर सकोगे। और ये जो आपको इतनी एमिनेंस नजर आ रही है, थिनार, इतना बड़ा बल्क, क्या बल्क रहेगा कि 2 महीने बाद प्रेस हो जाएगा? ये भी तो हम इसको कहेंगे कि थिनार एमिनेंस, इसको कहते हैं थिनार एमिनेंस, दैट विल बिकम फ्लैट, फ्लैट हो जाएगी। इसलिए क्योंकि उसमें वो बल्क रहेगा नहीं, उसकी एट्रोफी हो जाएगी। इसको मिला के हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। क्योंकि कहां गड़बड़ हुई है? कार्पल टनल में हुई है। तो कौन सी नर्व जब इसके निशाने पे आ गई है? तो कार्पल टनल सिंड्रोम इज द प्रॉब्लम ऑफ मीडियन नर्व, क्ला हैंड इज द प्रॉब्लम ऑफ अल्नर नर्व, रिस्ट ड्रॉप इज द प्रॉब्लम ऑफ मीडियन नर्व, सॉरी रेडियल नर्व, एंड सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस प्रॉब्लम विल अफेक्ट योर एक्सिलरी नर्व। ये 4 बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं जो रिलेटेड हैं किसके साथ? प्लेक्सस के साथ, जिसका नाम है ब्रेकियल प्लेक्सस। अभी आप 15-20 मिनट गैप करें तो आते हैं कुछ और स्पाइनल नर्व्स पे, थोड़ा और नीचे आते हैं और देखते हैं थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स, और फिर देखते हैं लंबर स्पाइनल नर्व्स और सेक्रल स्पाइनल नर्व्स। जब आएंगे ना सेक्रल पे, फिर बनेगा एक प्लेक्सस। तो उस प्लेक्सस को यहां पे हम चल के देखते हैं। अभी मैं ये व्हाट्सएप पे लेके आता हूं। क्ला हैंड कहते हैं उसको, सिंड्रोम नहीं है वो, क्ला हैंड। अल्नर नर्व